Morning, everyone. I, Dr. Sarika Dhupar, Subject Specialist at REAP-Cell, SCRT Haryana, welcome you all to today's webinar on action research. I thank the Reverend Director at SCRT Haryana, Shri Samvartak Singh IS, for giving us this opportunity to conduct this webinar. Joining me as key speaker is Madam Rupam Jha, Senior Specialist and Wing in Charge at REAP-Cell, and providing academic support to is Dr. Shinu Daya, Research Associate at REAP-Cell SCRT. Let me just clarify. The full form of REAP is the Center of Research and Experimentation for Action in Policy. And REAP is the research department established by Department of School Education Haryana in July 2011 under the aegis of SCRT Haryana, with the aim to institute research and monitoring activities within the department for timely and efficient feedback into policy making. We at REAP help in smooth implementation of various projects and surveys which ultimately lead to improved learning outcome for students. In addition, we conduct capacity building trainings of DIET and school faculty. So today we have organized this webinar on action research, and I must say we are very fortunate to have Additional Director Shri Sunil Bajaj sir with us. And before we actually start interacting, I would request Additional Director sir to please start us off with some opening remarks on action research. Good morning all. SCRT is organizing various webinars on various topics, and this is one of the important area, action research or webinar on action research. However, for the last 2-3 years, as told by Sarika ji, that we are organizing seminars for teachers, for BRPs, for diet faculty. So this area is without name was happening for the lot of time, because teachers are doing action research on their own. They are having lot of different day-to-day issues to which they resolve on their own. Now in this action research, it is expected that they should document that also, how to get benefit of that action research, and it can be shared to other teachers, other teacher educators and other stakeholders. So action research is a very day-to-day issues which are faced by the teachers, and it's different from the normal traditional research we are talking. So I hereby congratulate the REAP-Cell for organizing or giving opportunity to teachers and all concerned to listen about this action research, popularize it. Let's all teachers do some action researches, do some activities, and then document it and share it with the others also. For the diets also, they should keep note of it, that at least they have some teachers, those who are conducting good researches, their best practices can be shared. One thing, make sure that it is not necessary that finding or the solution developed in one action research may happen through the other also. So, but maybe if the all conditions are same, then it can be useful, because in every action research you will find the same issue but different conditions. So that will matter, that same formula will help in that. Similar to the concept, when we deal in the classroom, we have differentiated instructions for different students. As you know, some students have interest in stories. Some students are interested in playing, and some students are interested in only listening and understanding without any context. So it all depends. So if you have dealt one concept with adding a story into it, by making it contextualizing with reference to some story, one is doing some TLM or some other material and then doing that.
So, or some may be intervening with the help of some nice worksheets and assessment activities. So all have tried all different ways to let children learn about the topic which they were not able to learn directly when it was did in the classroom. So different intervention have been made. Similar to that, there are many areas which are the same problem that children were not able to understand, suppose LCM. So one has done some other type of problem. One has done the same thing using puzzles. One has done by doing some physical concrete model of explaining the LCM concept. One so this intervention can be different and issues can be resolved. So that's why I hereby congratulate that you can do those action researches and document that and share it in conferences. SCRT for the last 2 years been organizing various conferences, and this year also we have planned 5 conferences and even some seminars also. So we will also organize one conference and at least 3 or 4 seminars where you teachers or teacher educators will be given opportunity to share their action researches in the webinar, and so that other can get benefited and get the result. So thank you all, and thank you this REAPCEL for organizing this wonderful webinar on action research. Thank you. Thank you, sir. And you must have got some idea about what action research is and why it is important. Just let me add on to that. In school education, NEP 2020 emphasizes research-oriented learning by embedding inquiry, critical thinking, and project-based approaches into the curriculum. और साथ ही साथ ये भी NEP 2020 इस बात पे भी जोर देते हैं कि हमारा टीचर्स का जो है वो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलता रहना चाहिए ताकि हमारे टीचर्स एनकरेज हों टू कंडक्ट क्लासरूम बेस्ड एक्शन रिसर्च। फाइनली आज जो हम मिले हैं यहाँ पर वो इसलिए मिले हैं क्योंकि कुछ एक कंफ्यूजन रहता है कि जब रिसर्च की बात आती है तो सबको ये लगता है कि कोई बहुत उनके ऊपर बड़ा सा एक बोझ की तरह कुछ और एक नई चीज थोपी जा रही है कि रिसर्च तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्वियसली रिसर्च ऐसा ही हम समझते हैं रिसर्च के बारे में, लेकिन जो नया कंसेप्ट है हमारा एक्शन रिसर्च, दिस इज अबाउट क्लासरूम एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन के बारे में हम जब अपने आप से अपने लेवल पे लोकलाइज लेवल पे रिसर्च करते हैं और अपने ही पेडागोजीज को ट्राई करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वही एक्शन रिसर्च है। पर उसके बारे में कुछ डिटेल में बताने के लिए अब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारी विंग इंचार्ज मैडम रूपम झा को। उन्हें वेलकम करती हूँ आज के वेबिनार में और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे जो आज पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं हमारे साथ हरियाणा के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं मैम कि जो ये एक्शन रिसर्च है वो क्या है और ये ट्रेडिशनल जो रिसर्च मेथड्स होते हैं उनसे हाउ इट इज डिफरेंट। Good morning, participants, and thank you, Dr. Sarika. It is a good platform to meet and to interact with so many people. You all participants have made this interaction possible. So basically, we are here to talk about action research. Action research in education. ये क्या है? सुनने में तो बहुत भारी भरकम शब्द है, लेकिन टीचर्स के लिए ये नॉर्मल क्लासरूम प्रैक्टिस है। बस इतना फर्क है कि वो अब एक्शन रिसर्च करने के बाद वो इसको डॉक्यूमेंट करते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। So what is action research? In education, it is a systematic, reflective process where educators, whether they are teachers, whether they are administrators or counselors, investigate their own classroom and the challenges in the classroom to improve their own teaching practices. And all this while using pedagogical methods. Why the need for pedagogical methods? Because जब आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हो, मे बी कुछ बच्चे, बिकॉज क्लासरूम बहुत डाइवर्स होता है,
मे बी कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं इन देयर लर्निंग। तो लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रैक्टिस इज इनकरेज। इसमें टीचर अपना खुद टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन द वर्क प्लेस है एक्शन रिसर्च, बट इट इज नॉट अ मैजिकल क्योर. It is a scientific strategy which has been designed in such a way to transform the complex classroom situation and to make it very simple. Just to put it simply, we can say that action research is basically when the teacher realizes that some students, कुछ students पीछे रह गए हैं किसी एक टॉपिक पे। एंड ये जो एक्शन रिसर्च है इसमें एक नेचुरल सेटिंग होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, सेम एज के बच्चे होने चाहिए और लिमिटेड विद इन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, डाइवर्स नहीं होना, बहुत ज्यादा वाइड नहीं होना चाहिए। तो विद इन द क्लासरूम देन द टीचर सिंपली टेक्स अ प्री टेस्ट, पहले प्री टेस्ट, और जो भी प्रॉब्लम है उसमें एक नया मेथड यूज करते हैं टू टीच दैट, and later on takes a post test after the new interventions or new methods of teaching have been introduced. अगर improvement है in the pre-test, in the post-test, over and above the pre-test, तब ये action research एक success है, एक report generate किया जा सकता है। In action research बहुत time consuming नहीं है और सारे in the analysis of action research बहुत ज्यादा principles नहीं यूज होते हैं। It is a cyclical step, क्योंकि अगर आपका ये सक्सेस नहीं हुआ, ये प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इंटरवेंशन और पोस्ट टेस्ट, तो आप दोबारा से कर सकते हो। Cyclical steps of planning. First you plan it, you identify the problem, you plan it, तब उस पे आप act करते हो, फिर आप observe करते हो results, and reflecting to solve specific issues like student engagement, retention, or curriculum effectiveness. Sarika, can you share me a topic where we face a lot of problems in that, where teachers face a lot of problems in the classroom? Should we take a 21st century skill? मैम हम वो कर सकते हैं, बट आई थिंक इससे पहले एक बार हम थोड़ा अगर क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि टीचर्स को हमेशा रिसर्च एक बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। तो एक बार हम उससे पहले ये बता दें कि जो ये रिसर्च हम है, जो हम स्कूल सिस्टम में या हम क्लासरूम सिस्टम में, नॉट क्लासरूम में तो हम एक्शन रिसर्च में ही जाएंगे, लेकिन स्कूल सिस्टम के अंदर, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो हम रिसर्च करते हैं वो कितनी तरह की करते हैं, अगर हम वहां से एक बार उनको क्लैरिफाई करें और फिर एक्शन रिसर्च की तरफ आए तो शायद एक अंडरस्टैंडिंग और स्मूथ हो जाएगी हमारे टीचर्स के लिए। तो आप प्लीज इस बात पे फोकस करेंगे कि एजुकेशन रिसर्च जो है वो कितनी तरह से है और कौन सी रिसर्च को हम अप्लाई कर सकते हैं इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशनल रिसर्च बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। बेसिक रिसर्च, जिससे सब लोग वाकिफ है, और जो जिन्होंने पीएचडी की हुई है, एमएड की हुई है, वो ऑलरेडी कर चुके होंगे। Then you have a dipstick study, and then you have where you identify a problem, and you have action research where you solve a problem. And today we will talk about all these types of research, but in detail only action research. So action research basically bridges the gap between theory and reality. Theory is कि टीचर बच्चे का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव कर सकता है, और रियलिटी है किस तरह वो लर्निंग आउटकम एक्चुअली इम्प्रूव करता है, सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। सो एक्शन रिसर्च इज बेसिकली सॉल्यूशन बेस्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते It's basically solution based. Purpose is to improve teaching learning immediately, and you can apply it solution focused. This leads to teachers professional development. Aajkal after NEP 2020 you see a lot of focus on teachers professional development. आप लोग खुद educators हैं, बहुत सारे trainings हो रहे हैं for
teachers professional development, empowerment and ownership. Empowerment की as an educator आप empower हुए हो, actually you have found a solution to something and you can own that report. It does not require a lot of statistical methods. You just have to see कि pre-test post-test में क्या फर्क आया है, and very basic methods are used. It is flexible, it is adaptable and collaborative because you collaborate with your team, with other teachers, and you find suggest a solution. You test the solution. कोई एक solution आपको suggest, आपको कहीं से suggestion मिल सकता है, and you test that solution. So it is collaborative also, and in every way, the teacher stands to gain by doing this. ये नॉर्मल जैसे कि हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर ने बताया था कि टीचर्स हैव कॉन्स्टेंटली बी डूइंग दिस प्रैक्टिस न्यू मेथड्स टू टीच अ ओल्ड और कॉमन टॉपिक, पर ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको एक्चुअली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. सो व्हाट इज एक्शन रिसर्च वो हम डिस्कस कर लिए हैं. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इट इज अ साइकिल and it is a classroom practice. Educational research में आप systematically study करते हो to basically improve teaching and learning and improve learning outcomes. All educational research focuses on solving educational problems and improving outcomes. Most common types of educational research हम बात कर चुके हैं. Descriptive research जो हम normally identify करते हैं research के साथ, dipstick study और एक्शन रिसर्च. अभी पहले पे रहेंगे इससे पहले. तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पर्पस क्या है. टू डिस्क्राइब द अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग कंडीशंस, टू स्टडी द स्टेटस, टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल, स्टडीइंग द हैबिट्स ऑफ हाउ चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क और एनी अदर एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू the learner, teaching learning. This does not involve changing the situation. इसमें आप situation change नहीं कर सकते हो, आप situation understand करते हो. First you understand the situation and then you want to change it. Descriptive, as the name suggests, is very wide, broad-based, and it can be generalized. Descriptive study can be generalized. Then we come to the dipstick study. Dipstick study is a new concept, but it gives you a snapshot into what the current situation is like, so that after you know कि current situation क्या है, आप changes ला सकते हो. And it is, the sample size is very small. You can see on your screen right now. A school wants to quickly check students' satisfaction with online classes. They do a small dipstick study. If there's a problem, they can identify it. And it provides a helping hand for the school administrators also. Action research, अभी session के start से हम discuss कर रहे हैं. The teacher wants to improve their teaching practices. A teacher observes low participation in classroom discussion, tries to focus on involving all students. तो हम सारे टीचर्स हैं, अगर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, तो हम किस तरह करते हैं? हम ग्रुप एक्टिविटी बना सकते हैं. ग्रुप एक्टिविटी हियर विल बी एन इंटरवेंशन. मैंने पहले ही बता दिया था व्हाट इज इंटरवेंशन. प्री टेस्ट के बाद आता है इंटरवेंशन, उसके बाद पोस्ट टेस्ट. ग्रुप एक्टिविटी विल बी एन इंटरवेंशन जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में हर बच्चा पार्ट लेता है. कुछ बच्चे होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उनको भी एक चांस मिलता है कुछ प्रेजेंट करने का, और धीरे धीरे क्लास पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो जाता है. वो आपके पोस्ट टेस्ट से पता चलेगा.
मुझे लगता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसके बाद काफी क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो जनरलाइज करने वाली रिसर्च है, जो एक अलग है, वो एक बहुत बड़े सैंपल के साथ, पॉपुलेशन के साथ आप करते हैं, और एक किसी थ्योरी को जनरलाइज करना है, किसी आपके कंसेप्ट को जनरलाइज करना है, तब आप यूज करते हैं। डिप्स्टिक रिसर्च जो हम नॉर्मली करेंगे वो एक प्रॉब्लम को आंकने के लिए कि कितने लेवल की प्रॉब्लम है उसको आंकने के लिए हम डिप्स्टिक रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो इनके बारे में अगर आपको आगे कुछ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करना होगा तो वी कैन हैव अनदर सेशंस फॉर दैट। लेकिन जो आज जैसा मैम ने बताया है कि आज हम एक्शन रिसर्च पे बात कर रहे हैं, तो दिस इज, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, जैसा बजाज सर ने भी कहा था और जैसा अभी मैम ने भी बताया है कि एक्शन रिसर्च कोई नई बात नहीं है, सिर्फ एक टर्म है जो अब हम यूज कर रहे हैं। बहुत सी हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो जो टीचर्स, पैशनेट टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स बहुत साल पहले से, बल्कि गुरुकुल टाइम से ही करते आ रहे हैं। लेकिन अब जब एनईपी 2020 के अंदर हमने कुछ टर्म्स यूज कर दिया है 21st सेंचुरी स्किल्स रिसर्च को लेकर, अब रिसर्च को आगे हमने बाइफरकेट कर दिया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिप्स्टिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च। तो हम ये समझें कि एक टीचर जब एक क्लासरूम के अंदर जाता है किसी भी सेशन के बिगनिंग में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सब ये चीज को एक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, आंकने की कोशिश करते हैं कि जो ग्रुप हमें अभी मिला है एक पर्टिकुलर सेक्शन के रूप में, उसमें किस तरह की पेडागोजिस, किस तरह के हमारे जो एफर्ट्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे टू अचीव द लर्निंग आउटकम्स। हमारे पास एक ही साल में, एक ही सेशन में अगर 2-3 डिफरेंट सेक्शन भी हैं एक क्लास के, तो वहां पर जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और एक सेक्शन में जो चीज काम आती है वो नॉर्मली दूसरे सेक्शन में कई बार उतने लेवल तक काम नहीं आ पाती। और फिर अगर विद इन अ सेक्शन भी बात करें तो हर बच्चा अलग है, तो उनके साथ कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बहुत क्विक लर्नर्स हैं और या पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं लर्निंग के साथ, कुछ बच्चे हमारे साथ चलते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं। तो हर टीचर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करते हुए अपनी पूरी क्लास को आगे लेकर जाते हैं। तो वही जो एक्टिविटीज या वही जो स्ट्रेटजीज की प्लानिंग है वो एक्शन रिसर्च में आती है। लेकिन सबसे पहले हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमारे क्लास किस लेवल पे है या डिफरेंट जो बच्चे हैं वो किस लेवल पे है? उसके लिए हम एक टेस्ट जब कर लेते हैं, तो उस टेस्ट के बाद, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, उसके बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमारे कितने बच्चे एक नॉर्मल स्पेस पे जाएंगे, कितने बच्चों को एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारा जो प्री टेस्टिंग की मैम ने बात की है, और उसके बाद फिर हम अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करते हैं और उन प्लानिंग के ऊपर एक्ट करते हैं। और एक्ट करने के बाद दोबारा से एक टेस्ट लिया जाता है देखने के लिए कि जो हमने स्ट्रेटेजीज प्लान की थी या जो एफर्ट्स हमने किए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए, क्या वो सक्सेसफुल है। तो जो पोस्ट टेस्ट होता है एक तरह से हम कह सकते हैं, या उसके बाद हमारे एफर्ट्स के बाद जो टेस्ट होता है, उसके बाद हमें समझ में आता है कि वो हम अपनी स्ट्रेटेजीज को लेकर कितना सक्सेसफुल हुए हैं टू अचीव द लर्निंग आउटकम। और उसके बाद उस रिफ्लेक्शन के बाद ये बात यहाँ नहीं रुकती शायद मैम, है ना? और उसके बाद हम दोबारा से, ये साइकिल है, हम क्यों इसे साइकिल कह रहे हैं अभी मैम आपको बताएंगे कि एक्शन रिसर्च जो है एक साइकिल है और उसके स्टेप से आपको अवगत कराएंगे मैम। लेकिन साइकिल इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है कि जो स्ट्रेटेजीज हमने पहले राउंड में अप्लाई की वो हमारे 25% बच्चों के साथ सक्सेसफुल हुई हो, तो हम रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर दोबारा से स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि और बच्चे जो है या बाकी बच्चे हैं वो सक्सेसफुल हो पाए या उस टॉपिक को समझ पाए। आप सेकेंड राउंड में उतरते हैं सेम स्टेप्स के साथ, आप प्लान करेंगे, आप उनको एक्शन में लाएंगे और स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो मैम अब हम आगे बढ़े, आगे फॉरवर्ड करते हैं, हम साइकिल पे आएंगे अब। नेक्स्ट स्लाइड। एक्शन रिसर्च में और नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये वाला। टीचर का लीडरशिप क्वालिटीज भी बढ़ता है, बिकॉज हियर द टीचर सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो लीडरशिप क्वालिटी है। जो बाकी दो टाइप के रिसर्च थे उसमें एक रिसर्चर कर सकता है रिसर्च, बट एक्शन रिसर्चर सिर्फ
एजुकेटर ही कर सकता है जो क्लासरूम के अंदर होता है। तो मैम ये जो एक्चुअल से प्रोसेस है, इसकी जो स्टेप्स है, we would like you to just Okay, it was Tell about started by Kurt Lewin in 1944. It is a practical collaborative method. Practical क्योंकि ये हम कर सकते हैं, collaborative क्योंकि ये टीम वर्क है, हम दूसरों की हेल्प ले सकते हैं और अपना फाइंडिंग्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसमें ये इन्वेस्टिगेटिव है और सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम, also known as the cycle of action or inquiry. Here, why is it called action? Action here is the inquiry. And action here is because you can take action about the problem in your classroom. You are in your classroom, only you know the real problem, the real situation. And you can take action to solve that problem. Involves conducting research and taking action at the same time. आपका रिजल्ट, उसमें इंटरवेंशन आप कुछ हफ्तों के लिए ही करते हो, इसलिए आप एक्शन ले सकते हो, रिजल्ट आपके सामने आ जाता है. Highly interactive and mainly used in social sciences, but can be used in other sciences as well, and can be used in all subjects in all classes. Very popular in educational settings, and it is really being promoted, action research, as a problem-solving ability within the four walls of the classroom. It promotes reflection and bridges theory and practice. Theory hai, you know the theory and you know how to practice it. In other words, it is a reflective process where teachers identify classroom problems and test solutions to improve teaching practices. It is a classroom-based intervention. Intervention is जो आप कुछ additional करते हो, not just the text. उस text को और easily comprehensible by students करना चाहते हो, तो वो आप एक intervention डालते हो और new method use कर सकते हो. The new method or intervention is generally pedagogical in nature, ताकि आप हर बच्चे के लेवल तक जा सकते हो. और कुछ बच्चे फर्स्ट साइकिल में इम्प्रूवमेंट शो करते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में, इसलिए ये साइकिल चलते रहता है. And there's a sense of satisfaction also, Sarika, yes. Dr. Sarika, after doing the action research. जी मैम, ये कुछ जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्टेप्स हैं. Identify the problem, plan action, implement, observe and collect data, reflect and evaluate, revise and repeat. I would request you to elaborate on these. इनको थोड़ा सा आप और डिटेल में बताएंगे with next slide. So the cycle is quite clear. Identify the problem. क्या problem है, कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन से बिहेवियरल पैटर्न में बच्चे को, not always academic, it can be other things related to lifelong learning also, जैसे behavioral pattern like poor communication skills, ये भी हो सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम हो, उसके बाद आप उसका एक्शन प्लान करते हो, उसको जो भी इंटरवेंशन है आपका, उसको लागू करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो. फिर यू ऑब्जर्व एंड यू कलेक्ट डेटा. फिर यू रिफ्लेक्ट एंड इवेल्युएट कि इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, या कुछ बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ है या सभी बच्चों का. फिर रिवाइज एंड रिपीट. रिवाइज एंड रिपीट, कुछ बच्चों का हुआ है तो फिर आप थोड़ा सा रिवाइज करोगे कि और इसको लर्नर फ्रेंडली बना सकते हैं. बिल्कुल, तभी हम इसको साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसी को साइकिल कहते हैं. आगे आगे कर सकते हैं. तो हम मैम अब चाहेंगे कि आप थोड़ा सा, जैसे मैंने आपसे बात किया था, आई थिंक वी शुड स्टे ऑन द प्रीवियस स्लाइड. एक जैसे मान लीजिए एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को इनिशियल स्टेजेस में, कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम होता है, वो बात ही नहीं कर पाते. हम एनईपी की बात कर रहे हैं, हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि आजकल कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है. आप केवल कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग.
इम्पोर्टेंट तो रहता है ऑब्वियसली, जब आप साल साल करते हैं असेसमेंट्स होती हैं, पर जो मोर मैं अगर कहूँ कि ज्यादा इम्फेसिस आजकल आ रहा है 21st सेंचुरी स्किल्स में, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा रोल निभाता है कि आप अपनी बात को कितना इफेक्टिवली कह सकते हैं। तो उसमें कई बार बच्चों को बड़ा इशू रहता है, स्पेशली हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं, तो क्योंकि बिकॉज घर पे भी मोस्टली जिस तरह के वो सेटअप से आते हैं, तो वहां पे जिस तरह के स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल होने के लिए, वो शायद उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब टीचर फेस करते हैं, तो वो उसमें अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक क्लास है और वहां टीचर गए और वो एक लैंग्वेज को ले लेते हैं, चलिए कि अगर इंग्लिश में, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि आपको आजकल विद इन कंट्री भी अगर दूसरे स्टेट से भी इंटरेक्ट करना है, दूसरे स्टेट के लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, या फिर आगे जाकर बच्चा और सक्सेसफुल होता है ग्लोबली भी इंटरेक्ट करना है, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बातचीत करना थोड़ा सा आना चाहिए। अगर एक यही प्रॉब्लम ले ले, तो आप बताइए एक टीचर जाकर क्लासरूम में देखें तो किस तरह से वो एक्शन रिसर्च के माध्यम से अपनी क्लास का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। So, communication skill is a very genuine problem, Dr. Sarika, and it is a 21st century skill. Or 21st, NEP says we should have 3 languages for wider communication. So that is the importance of communication. And we know कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इंग्लिश से थोड़ा सा घबराते हैं। तो communication skill teacher realizes कि teacher identifies the problem that students are poor in communication skill. एक्शन क्या प्लान करते हैं कि हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए कुछ बोलने का। वो घबराते हैं, दे फील शाय, उससे उनका पर्सनालिटी भी थोड़ा सा दब जाता है। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? एक प्रेयर या एक पोएम हर बच्चे को दिया जाता है, मे बी द सेम प्रेयर और इन डिफरेंट ग्रुप्स, और 1-2 दिन दिया जाता है कि वो लर्न करे और हर बच्चा ये बोले, जो भी प्रेयर है या पोएम है। तो हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है बोलने को, और टीचर कैन देन ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा। बल्कि जब ये पहले बात जो आइडेंटिफाई करते हो, प्लान करते हो एक्शन, पहले भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन बच्चे लो परफॉर्मिंग थे, और जब दूसरी बार ऑब्जर्व करते हैं, जब बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस करें और उनका थोड़ा झिझक भूल जाए और वो किस तरह बोलते हैं, तब यू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा। द टीचर कैन ऑल्सो मेक स्मॉल ग्रुप्स, जो ये ऑब्जर्वेशन के बाद। मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगी। श्योर, टेक्निकल इशू है हमारा कि जो मुझे कई जगह से मैसेज आ रहा है कि हमारा जो कैपेसिटी है जूम प्लेटफॉर्म के एंटर करने का, वो कंप्लीट हो चुका है एंड पीपल आर नॉट एबल टू फॉलो। 500 है। तो क्या यूट्यूब लिंक हमने शेयर किया है जो हमारा वेबिनार लाइव जा रहा है उसका अभी? ओके, तो अभी नहीं हमने वो क्रिएट किया है हम। ठीक है, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, या हम ये मैसेज भी डाल देंगे, अगर कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इसका यूट्यूब लिंक जो है वो शेयर कर देंगे, एंड जो लोग इसको सुनना चाहते हैं वेबिनार को एक्शन रिसर्च पे, दे कैन जॉइन टुमारो। तो ये थोड़ा सा एक चीज है, क्योंकि कैपेसिटी का हमारा एक कैपिंग है और वो पूरा भर चुका है। तो अब नेक्स्ट वी विल share the YouTube link, and we would request you to just go to YouTube that link and see, watch this particular session. और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगा या कुछ भी ऐसा पॉइंट रहेगा जहां आप समझना चाहें या फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग चाहें, तो वी वुड एक्चुअली गो थ्रू दोस कमेंट्स। आप हमें शेयर करिएगा YouTube लिंक पर, और हम एक दोबारा एक सेशन करेंगे जहां पर हम आपको वो चीजें और बेहतर से समझा पाएंगे। Thank you, Dr. Sarika. Very important point. And we got observation and data collection. And teacher can interventions where teacher can also form small groups after observation. Some students have improved. So peer group learning can also be practiced here. Small groups and students practice among themselves, and they are given another chance. So the teacher can reflect, evaluate, and revise and repeat.
So communication skill, this was just a very basic example of how we can practice action research. If everything is tabulated and a report is generated, it will be useful for other practitioners as well. So this we have already discussed. Implement, act, observe, collect data. जी, Is it? वो हमारा हो चुका है मैम. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहेंगे. जैसे मैम ने कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया कि क्लास में किस तरह से बच्चों को डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए, डिफरेंट पेडागोजीज को अप्लाई करते हुए आप उनको बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, रोल प्लेज, या फिर आप जैसे मैम ने बताया पेयर लर्निंग इज वेरी गुड मेथड. तो टीचर कैन जस्ट कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज जब तक कि उनको अपना रिक्वायर्ड जो लर्निंग आउटकम है उस लेवल तक का अचीव होता है. एंड ऑब्वियसली टीचर नोज द बेस्ट विद हर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कि वो किस तरह की स्ट्रेटजीज को ट्राई कर बच्चों को में लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं. मैम अभी साथ ही में मैं चाहूंगी कि हम कुछ सब्जेक्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो हमारा कुछ इश्यूज आ सकते हैं उनमें एक्शन रिसर्च को किस तरह से यूज कर वहां पर उन सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर लर्निंग को जो है एनहांस किया जा सकता है. तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की. Yes, Dr. Sarika. So next slide please. Next slide. So we have given again a very general example, difficulty in fractions. Math से बच्चे डरते हैं and math में बहुत problems आती है, डरते हैं. So what can a teacher do? The problem difficulty is in fractions. Maths में कैसे पढ़ाया जा सकता है? Using visual aids. TLM होने चाहिए visual aids. अगर visual aids कोई, you don't need very elaborate visual aids. You can make visual aids. You can demonstrate visual aids, and you can teach with real objects. You can teach with real objects, and the result will definitely be improved understanding. At least in the first go, बच्चे ये समझ जाएंगे what does fraction mean, what does half mean, what does 1/4 mean, what does 1/3 mean. So at least little bit, step by step, they will learn. Then you can prepare for your next cycle. And the reflection will be to continue the interactive methods. उसमें एक और फायदा होगा. As a teacher, you will learn कि students are no longer scared of maths. जी. और अगर हम नेक्स्ट जो इंग्लिश है उसमें अभी हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का बात किया था. अब अगर हम राइटिंग स्किल्स का, क्योंकि हम आपको देखिए हर क्लासरूम में हर बच्चे के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम होगा. आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लोकलाइज्ड कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स होंगे. हम सिर्फ आपको एक छोटा एग्जांपल देकर ये एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन रिसर्च को यूज करते हुए किस तरह से आप अपनी क्लास के साथ बेटर रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं. तो मैम इंग्लिश में अगर पुअर राइटिंग स्किल्स है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं. We have taken a poor writing skills के लिए we have daily journaling, daily writing something. It can be something very interesting. It can be the newspaper headline, it can be any current issue, but daily writing, not very lengthy writing, but daily writing something interesting, which will, it can be from the text also, it can be contextual, but daily writing and writing practice होगा इसमें बच्चों का, vocabulary बढ़ेगा बच्चों का, handwriting improve होगा, and the ability expressions will also improve. फिर धीरे धीरे ये writing skills improve होंगे. And good writing skills helps in lifelong learning and in all subjects, because the power expression comes, and in all subjects the spellings, the vocabulary, it all improves. Better vocabulary and expression and reflection of course, continue practical learning. Some students take more time because every one of us are different. कुछ बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है, वो भी राइट करेंगे, वो भी सीखेंगे how to express and not to be scared of expressing, of writing.
and not to be scared of punishments or any other fear of the text. जी, आगे बढ़ते हैं. अगर साइंस का कोई एग्जाम्पल और सोशल स्टडीज का कोई एग्जाम्पल देकर आप समझा सकें कि किस तरह से वहां एक्शन रिसर्च के माध्यम से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. लो इंटरेस्ट इन साइंस, बच्चों को लगता है साइंस बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे. मे बी अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ाते रहे साइंस में तो बच्चों को ये लग सकता है. बट अगर आप कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट प्लान करें, in science you can plan experiments even with day-to-day objects, and of course you can use the lab. कुछ hands-on activity कराएं. Then observation is that there's increased engagement. Hands-on activity में हर बच्चा पार्ट लेना चाहेगा और हर बच्चा नोट करेगा, हर बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा एंड हर बच्चा फिर उसको रिकॉर्ड करेगा उसने क्या देखा. So there's so much learning in this, and the reflection of course is continue the practical learning. This will be a really practical learning. So we are just giving you general examples. इस लाइन पे आप चल सकते हैं. सोशल स्टडीज में जैसे लैक ऑफ अगर पार्टिसिपेशन है तो उसमें अगेन आई गेस कुछ मेथड्स मेंशन है. डिस्कशंस आप कर सकते हो, डिफरेंट टॉपिक्स दे सकते हो बच्चों को, बिकॉज बच्चे सोशल स्टडीज से भागते हैं, उनको डेट्स लर्न करना मुश्किल लगता है और वो मैप दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द वर्ल्ड मैप द मैप ऑफ इंडिया. तो ये ग्रुप डिस्कशन में अगर कर लेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स में तो फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इनका जीके बढ़ेगा एंड द quest for learning will also improve. They will be active participants because participation, the students will want to find out something new. जी, मुझे लगता है रूपम मैम इसमें जैसे हम NEP 2020 के कुछ और जैसे अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, NEP 2020 बात करती है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की, NEP 2020 बात करती है इंक्लूसिव लर्निंग की. तो कहीं ना कहीं जो एक्शन रिसर्च है ये इन चीजों में अगर बेसिकली क्या है आर्ट इंटीग्रेशन क्या है, जैसे कि आपने एग्जांपल बताया कि साइंस को सिर्फ थ्योरेटिकल किताब से पढ़ाने की बजाय अगर कुछ एक्टिविटीज के बेस पे पढ़ाया जाए तो एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं या फिर वो उसमें कुछ दे कैन प्रिपेयर सम रोल प्लेस प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये वहां पर वो आर्ट इंटीग्रेशन भी हो गया. सो दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट स्ट्रेटेजाइजिंग और प्लानिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. तो जब हर बच्चा किसी न किसी रोल प्ले में या किसी उसके ऊपर पोएट्री लिख सकता है या कुछ उसके ऊपर कुछ सुना सकता है, तो जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनका एंगेजमेंट जैसे आप कह रही हैं कि इंक्रीज होगा आर्ट इंटीग्रेशन से और डिफरेंट एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करने से. तो बच्चे का उस सब्जेक्ट की तरफ ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं झुकाव भी हो जाता है. Yes. They start liking that subject. They start liking the teacher because teacher is giving them an opportunity to explore themselves. कि वो डिफरेंट माध्यम से हर बच्चा रोट लर्निंग नहीं कर सकता है ना. आई गेस एक्शन रिसर्च का ये रोल है. रोट लर्निंग करना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से अगर हम डिफरेंट एक्टिविटीज एक टीचर उनको इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी टीचिंग पेडागोजीज के अंदर तो उससे क्या होगा कि इंक्लूसिविटी हो जाएगी. हो सकता है कोई बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो उसके लिखने से ज्यादा, और कोई बच्चा उस चीज को परफॉर्म करके ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, उसके माइंड में वो चीज रह जाएगी. तो ये दोनों चीजें भी एक्शन रिसर्च जो है इन दोनों पैरामीटर्स को भी सपोर्ट करेगा कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाएगी बच्चे की, और साथ ही साथ जो इंक्लूसिविटी, अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर ढंग से नहीं पढ़ पा रहा तो उसको वो दूसरा टीचर विल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग वो कोई दूसरी स्ट्रेटेजी को अगर अपना लेंगे, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो हर बच्चा उस टॉपिक को समझ जाएगा और इसी तरह से जो है वो लर्निंग एनहांस हो जाएगी और हर बच्चे तक पहुंचेगी और हम कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो बेटर ढंग से अचीव हो पाए. डेफिनेटली. एंड उससे द expression of the child will also improve. चाहे वो facial expressions हो, चाहे वो artistic expressions हो, that will also improve. They will learn that all the subjects are connected. Like art, there's so much of art in science. They will also learn how to connect the dots.
जी मैम, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से, क्योंकि हम देखिए हर एस्पेक्ट को नहीं छू सकते थे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था एक्शन रिसर्च के ऊपर। हम आपको सिर्फ अवगत कराना चाहते थे कि ये चीजें हैं जो आप ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन अब साथ ही साथ आपको उनको डॉक्यूमेंट भी करना है। अगर आप उनको डॉक्यूमेंट करेंगे, मेरे ख्याल से जब हम बात करते हैं कोलैबोरेशन की, दैट इज अनदर 21st सेंचुरी स्किल, कि बच्चों में पेयर लर्निंग की तो हम बात कर रही हैं जब हम ग्रुप एक्टिविटीज की बात करते हैं, लेकिन टीचर्स भी जो हैं वो अपनी पेडागोजिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजीज अपनाई हैं अपनी क्लासरूम में एंड यू हैव गॉट द रिजल्ट्स, यानी कि आपके बच्चों में वो लर्निंग एनहांस हुई है, तो दैट मीन्स यू हैव अ सक्सेस स्टोरी। अगर आप उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, Yes, yes, that Dr. Sarika, that is very important. और शेयर करते Share हैं भी कर अपने सकते हैं। टीचर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं, तो हो सकता है कोई और टीचर भी उसी तरह की सिमिलर प्रॉब्लम के साथ को फेस कर रहे हो, और आपकी शेयरिंग से, आपके डॉक्यूमेंट को रीड करके या आपके डिस्कशंस के बेसिस पे, they can also try those things in their own classroom. I guess. Definitely, they can try it. And you get so many new ideas when you do your secondary research or you do your homework. जी, और मेनली हमने जैसे कहा कि एक्शन रिसर्च को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली अगर हो सकता है कि आपकी एक प्रॉब्लम है, आप अपने क्लासरूम में फेस कर रहे हैं, हो सकता है कोई टीचर किसी और स्कूल में या आप ही के स्कूल में किसी और क्लासरूम में वो सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो दे कैन यूज योर डॉक्यूमेंट्स और योर रिजल्ट्स और योर रिकॉर्डिंग्स टू ट्राई टू स्ट्रेटेजाइज। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन टीचर को इसी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी क्लासरूम में सक्सेस मिले। तो तभी हम कहते हैं जो एक्शन रिसर्च है वो बहुत लोकलाइज्ड रिसर्च है, वो आप ही की ग्रुप के साथ, आप ही की ग्रुप ऑफ जो आपका टारगेट ऑडियंस है या टारगेट जो आपका ग्रुप है उसी के साथ सक्सेसफुल होगा। लेकिन दूसरे टीचर सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए भी उनको हो सकता है वो स्ट्रेटेजी काम आए, या उनको उसी स्ट्रेटेजी को यूज करने के बाद कुछ और जब वो रिफ्लेक्ट करें और रीप्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ नई स्ट्रेटेजीज भी यूज करनी पड़ सकती हैं। तो हर टीचर अपनी प्रॉब्लम को, चाहे वो सिमिलर है चाहे वो डिफरेंट है, उनके लिए अपनी स्ट्रेटेजीज खुद तैयार करके अपनी सक्सेस स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। मैम, मैं अब हमने काफी बात कर ली है, आई गेस हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग भी हुआ Yes. होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप अगर अभी पीपीटी से अलावा हम पार्टिसिपेंट को देख सके, कोई पार्टिसिपेंट्स हमारे जिन्होंने एक्शन रिसर्च अपने पर्टिकुलर लोकलाइज्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया हो और दे हैव गॉट सम सक्सेस स्टोरी एंड दे वांट टू शेयर, तो हम ये जानना चाहेंगे। So you can raise your hand in case you have any problem. कोई आपकी जो, I guess we have one hand which is raised. तो हमारे साथ अनिल सैनी सर है, और हमारे साथ आई गेस डॉक्टर मोनिका भी हैं। डॉक्टर मोनिका है हमारे साथ ग्रुप में, मुझे देखिए जिन्होंने हैंड रेज किया है हम उनसे जी पूछ नमस्ते लेते मैम। हैं। जी नमस्कार सर। थैंक यू हमको ले SCRT रूपम मैम। स्क्रीन पे ले सकते हैं? हाँ, पीपीटी हटा के PPT निकालो, thank you मीनवाइल कर देते हैं। मीनवाइल पीपीटी हटा के वो एंड पे कर देंगे। जी जी अनिल सर, जी मेरी आवाज़ आ पा रही है? बिल्कुल आ Yes, रही है sir. सर। जी जैसा कि हम अभी पहले के सेशन में चर्चा की है हमने कि जो परंपरागत जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और एक्शन रिसर्च है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो हमको ये इतनी बात समझ में आती है कि एक्शन रिसर्च का मीनिंग ये है कि एक टीचर डेली की जो अपनी क्लासेज हैं या फिर अपनी जो स्कूल है उसमें जो भी समस्याओं को इंटरफेस करता है या जो उसके सामने जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के रूप में
हम इस एक्शन रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च वो माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रतिदिन की या दैनिक जो हमारी कक्षाएं हैं, क्लासेज हैं, उनमें स्टूडेंट के साथ या हमारे स्टाफ के साथ भी कह सकते हैं, या फिर स्कूल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनका एक समाधान हल हम निकाल सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में बात करते हैं कि मूलतः जैसे हम हमारे समाजशास्त्र जो विषय है, ये उस समाजशास्त्र में एक समस्या रहती है बच्चों के साथ कि जो अवधारणा के जो शब्द हैं, जैसे जनसांख्यिकी क्या होता है, समाज क्या होता है, या फिर संस्कृति क्या है, संस्कृतिकरण क्या है, या फिर सामाजिक संरचना क्या है, जो ऐसी जो शब्दावली वाले जो शब्द हैं वो पर्टिकुलर सोशियोलॉजी के बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये है कि पूरा पूरा सैद्धांतिक विषय है, थ्योरी वाला विषय है, तो बच्चे ज़्यादा देर तक अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जैसे 45 मिनट की क्लास है तो आई थिंक 15 मिनट तक तो बच्चे ठीक से चलते हैं, 15-20 मिनट तक। उसके बाद में कुछ बोरिंग सा क्लास हो जाता है, या फिर कह सकते हैं बच्चे जो कुछ कीवर्ड हैं उनको रटने पे ज़्यादा कोशिश करते हैं, उनके मीनिंग को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। कॉपीज में जब ये पेपर लिखते हैं तब ये समस्याएं हम फील करते हैं। तो ऐसी समस्या हमारे सामने या हमारी सोशियोलॉजी के बच्चों के सामने ज़्यादातर रहती है। तो इसके लिए हमने या मैंने अपने लेवल पे एक छोटा सा हमने इसके लिए एक्शन रिसर्च किया था अपनी क्लास में कि हम कुछ बच्चों को एक तो जो सोशियोलॉजी के थोड़े क्रिटिकल शब्द हैं उनको ठीक से समझाएं, और जिन बच्चों की कक्षा में भागीदारी कम रहती है उन बच्चों को क्लास में जोड़ें और उनके रटने को कम करके उनके समझने पे जोड़ दें। क्योंकि जब हम एग्जाम की कॉपियां बच्चों की चेक करते हैं तो हमें एक समस्या लगी कि बच्चे जो मीनिंग है, जो अवधारणा के जो शब्द हैं उनको ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने एक हाइब्रिड अप्रोच को अपनाया। हमने इसमें दो अप्रोच रखी, एक तो वर्ड पजल के द्वारा जिसको हम शब्द पहेली कहते हैं उसके द्वारा, और दूसरा हमने टीपीएस, थिंक पेयर और शेयर, सोचें विचार करें फिर ग्रुप में विचार करें और फिर उसको पूरी क्लास के साथ साझा करें, जिसको हमने थिंक पेयर और शेयर कहा। और दूसरा था वर्ड पजल के द्वारा हमने इसको एक कह सकते हैं कि मेथोडोलॉजी के रूप में हमने इन दो हाइब्रिड अप्रोच को अपनाया। जैसे हमने ये किया कि जैसे हमें बच्चों को बताना है कि पश्चिमीकरण एक टर्म होती है सोशियोलॉजी में, या ग्लोबलाइजेशन, उसका असर है वो भारत पे क्या पड़ा या आपके दैनिक जीवन पे क्या पड़ा, इसके बारे में हमने बच्चों के साथ टीपीएस को, थिंक पेयर और शेयर अप्रोच को अपनाया कि बच्चे पहले अकेले सोचें कि उन पे क्या असर पड़ा, फिर वो पेयर के रूप में सोचें, 2 बच्चे या 3 बच्चे पेयर बना के उस पर बात करें, और फिर हम क्लास के बाद में हमने कहा कि लास्ट में हमने पूछा कि कोई भी बच्चा अपनी बात शेयर करना चाहता है, तो जो बच्चा अपनी बात शेयर करना चाहता है वो अपना हाथ खड़ा करके उसके बारे में अपने विचार साझा कर सकता है। दूसरी अप्रोच हमने या मेथोडोलॉजी हमने इसमें वर्ड पजल की अपनाई कि हमने हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर से रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है उनके बारे में एक वर्ड पजल बनाई, और उन जो कठिन शब्द हैं उनको एक ग्रिड के माध्यम से बच्चों के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश की, या बच्चों से ही समझने की कोशिश की कि बच्चे उस शब्दावली के बारे में जो वर्ड पजल है उसको बनाएं या उस वर्ड पजल को सॉल्व करें। तो इसके लिए सीधी बात है कि हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो कोई बड़ी टूल की आवश्यकता नहीं है, बड़ा डाटा कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हमने प्री और पोस्ट टेस्ट को अपनाया कि हमने पहले ही देखा कि बच्चे इस मेथोडोलॉजी को अपनाने से पहले अपनी पेपर में क्या लिख पा रहे हैं और उसके बाद में क्या लिख पा रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी टैली किया कि जो टीपीएस है, थिंक पेयर और शेयर का जो सेशन है उसमें कितने बच्चे अपनी मर्जी से हाथ उठा रहे हैं और अपनी बात है वो क्लास में कहना चाह रहे हैं। और फिर हमने पजल की स्पीड को भी देखा कि शुरू की क्लासेज में बच्चों को समय लगा पजल को सोल्व करने में, लेकिन जैसे जैसे समय या हफ्ते बीतते गए, क्लासेज चलती रही, वैसे वैसे फिर बच्चों ने जो वर्ड पजल है उसको जल्दी से सोल्व करना शुरू कर दिया और अच्छे से सोल्व करना शुरू कर दिया। तो लास्ट में जब हमने इसकी की फाइंडिंग की या प्रमुख जो निष्कर्ष निकाले, तो इससे हमें ये पता चला कि एक तो बच्चों की रुचि में वृद्धि हुई, उनकी अटेंडेंस भी सुधरी सोशियोलॉजी क्लास में, साथ ही साथ जब वो टीपीएस, थिंक पेयर और शेयर का जो सेशन था उसकी वजह से जो बच्चे कम बोलते थे क्लास में या अपनी अपनी बात नहीं कहते थे, उन बच्चों ने भी हाथ खड़ा करना शुरू किया धीरे धीरे। और साथ ही साथ
जो पोस्ट टेस्ट हमने लिया या फिर जो क्लासेस में टेस्ट चलते थे, हाफ ईयरली एग्जाम चलता था या फिर जो क्लास टेस्ट चलते थे, उनमें हमने देखा कि बच्चों ने सोशियोलॉजी की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके बारे में अच्छे से लिखना कॉपी में शुरू किया, या पेपर में आंसर लिखते समय उन टर्म्स को लिखना और बेहतर से एक अच्छे तरीके से लिखना इसमें शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो मेथोलॉजी है इनको अपना करके हम जो उबाऊ क्लास कह सकते हैं या जो थ्योरेटिकल क्लासेज हैं जिनको हम सोशल साइंस के या ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम में मानते हैं, उनमें हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, थैंक यू मेरी सो साइड से। मच। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ, मुझे लगता है सबको आइडिया लग गया होगा कि जब आप क्लासरूम प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं तो वो ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है। आपने क्या इसको डॉक्यूमेंट किया सर? जी मैम, जी मैम, मैं कोऑर्डिनेटर था अभी भिवानी का लास्ट टाइम एक्शन रिसर्च का, तो मैंने इसको अपनी फाइलिंग में भी किया था और रूपा मैम के पास मैंने इसको दे भी रखा है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। मुझे अभी डॉक्टर मोनिका पंचकुला से हैं, अगर वो अपना हैंड रेज कर दें तो आई गेस हमें उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। शी आल्सो वांट्स टू शेयर अ स्टोरी। डॉक्टर मोनिका पंचकुला से। She's there, huh? हाँ जी Last. जी जी, उनका है। तो अनम्यूट कर दिया है मैम हमने आपको। अब हम चाहेंगे एक बार आप भी अपनी स्टोरी शेयर करें। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगी, क्योंकि जो आप फील्ड में से हमारे साथ कहानियां शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो टीचर्स के लिए ज्यादा रिलेटेबल होगी। तो हमें आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था और हमें बहुत खुशी है कि बहुत लोग मतलब हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी था वो तो भर ही गया है, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो जुड़ना चाहते थे, आज नहीं जुड़ पाए। हम अभी आज ही के दिन में इसका यूट्यूब लिंक भी शेयर करेंगे, तो वी वुड लाइक यू और जो लोग जुड़े हैं वो बाकी सबसे शेयर करें ताकि वो देख पाए। और नेक्स्ट टाइम साथ ही साथ यूट्यूब लिंक भी हम शेयर कर देंगे ताकि जो लोग यहाँ वेबिनार में नहीं एंटर कर पाए वो यूट्यूब पे देखकर हमें अपनी क्वेरीज या कमेंट्स लिख सकते हैं। डॉक्टर मोनिका, गुड आफ्टरनून मैम। वेलकम। हाँ जी मैम। मैम, जैसे रूपम झा मैम ने कई सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे साइंस का भी दिया और इंग्लिश का भी दिया। तो जो अभी तक की जो जर्नी रही है फॉर कंडक्टिंग ऑल दीज एक्शन रिसर्च, तो उसमें मैं एक बहुत ही पर्टिकुलर से 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी, वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे मैम साइंस के लिए बता रहे थे कि बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है। तो एक ईयर में हम लोगों ने डाइट पंचकुला ने ये किया था कि कई टॉपिक्स होते हैं साइंस के जो बच्चों को समझने में मुश्किल होती है। कई जैसे हम 9th 10th क्लास लें या चाहे 8th क्लास भी लें, तो उनमें कई ऐसे टॉपिक होते हैं कि टीचर काफी कोशिश, जो उनकी कंटेम्परेरी जो भी वो पेडागॉगीज को यूज करते हैं, उसके बावजूद भी उसमें रिजल्ट्स उनको उतने नहीं मिल पाते जितने और कुछ से वी कैन से कि कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स में मिलते हैं। तो कई टॉपिक्स ऐसे जरूर होते हैं। तो वंस वी डिड कि वो टॉपिक्स को हमने आइडेंटिफाई किया, वो चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ साइंस टीचर ओनली, कि जिसमें आपको ये चीज फील होती है कि उनके बहुत सारी कोशिश करने पे भी वो रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे हैं। तो वो 5-6 टॉपिक्स को चूज करके उनको जिन मेथड से मैम ने पहले पढ़ाया था वो वाले मेथड को छोड़ के जो कंटेम्प्रेरी मेथड है, फॉर एग्जांपल कि यूट्यूब पे बहुत सारे उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस थी, उनको हमने यूज किया। हमने डायलॉग मेथड को यूज किया, जैसे अभी एक सर ने, अनिल सर ने बात की थी शेयरिंग वाली, पेयरिंग एंड शेयरिंग वाली, उस तरीके का पीयर लर्निंग वाला मेथड यूज करके कि बच्चे एक दूसरे को उन टॉपिक्स को समझा रहे हैं। एक हमने उसके अंदर मेथड यूज किया कि बच्चों की ग्रुप बना दिया और ग्रुप में एक बच्चे को लीडर बनाया और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बेस्ट डिस्कशंस हो सकती हैं वो डिस्कशन करके और उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करने को बोला, ताकि वो जो टॉपिक्स हमने डिवाइड किए ग्रुप्स के अंदर, वो बच्चे जो हैं बाकियों को अपने लैंग्वेज में उनको समझा सके। ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको मेथडोलॉजीज के। तो ऐसे हमने 6 to 7 मेथडोलॉजीज को यूज किया और अगेन जैसे प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट किया, एंड देयर वाज अ रिमार्केबल डिफरेंस। तो जो हमने ये साइंस के लिए यूज किया है, ऐसे हम वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो कि हमें लगता है कि बच्चों को मुश्किल लगते हैं कई टॉपिक्स, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम कुछ ऐसी वाली ही प्रॉब्लम्स लें जो कि सारी की सारी क्लास के लिए है। अगर कुछ बच्चों को भी दिक्कत आ रही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ रही है,
उस केस में भी हम ये वाली चीज को कर सकते हैं। Thank you एक so तो much. हमने साइंस में एक हमने साइंस में ये किया था। एक जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स को लेके आपने एग्जाम्पल दिया था। इंग्लिश के अंदर हो चाहे हिंदी में हो, हमारे बच्चों में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन की भी प्रॉब्लम आती है कि प्रोनाउंसिएशन उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती, और हिंदी में बच्चों को मात्राओं की स्टार्टिंग में 6th-7th क्लासेस में ये बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस को यूज किया। इंटरवेंशन दिस इन द सेंस कि प्रैक्टिसेस तो हमने देनी है, लेकिन जो कई हमारे पास अब तो बहुत सारे ऐप भी हो गई हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हो गई हैं, जिसमें कि बच्चों को उनको एग्जाम्पल देना कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, हिंदी का वर्ड हो चाहे इंग्लिश का वर्ड हो। तो ऐसे करके 7 to 8 एक्टिविटीज अगर एक टीचर ऑर्गेनाइज कर लेती है फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो हम एक्शन रिसर्च को बहुत अच्छे से क्लास में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका, आपने जो अपने एक्सपीरियंस और जो एक्शन रिसर्च को लेकर हैं उनको शेयर किया। मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इसको देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, वो दे कैन आल्सो थिंक ऑफ सम स्ट्रेटजीज। यस और मैम, थैंक यू सो मच। और अब मेरे ख्याल से क्योंकि टाइम हो गया है आज का ये सेशन वाइंड अप करने के लिए, तो डॉक्टर रूपा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक जो हमें इसको समराइज, आज के सेशन को जो टेक अवे पॉइंट्स है उनको बताएं। लेकिन उससे पहले साथ ही मैं ये भी कह दूं कि जो और पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो दे कैन मेल टू अस एट रीड, और हम लोग ये प्लानिंग है हमारी कि आगे हम कुछ ऐसे सेशंस रखें जहां पर वी इनवाइट यू एज की स्पीकर्स और रिसोर्स पर्संस। वेबिनार के दौरान आप आए और जो आपने एक्शन रिसर्च की है उसको आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें वेबिनार में। तो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से। और रूपम मैम प्लीज। Participants, my apologies that I could not give everyone a chance to speak, because I can see the enthusiasm of the participants on the board. But next time, say, as Dr. Sarika has said, कि हम आप लोगों को chance देंगे और बोलने के लिए, so that we can have more and more participation and more interaction. And I think that is the gist of action research itself. More and more interaction, more and more collaboration, and problem solving. When you put a problem and you look for a solution, and that is how it is solved. So I think we can end the session now. Thank you all for being with us and giving us this opportunity. And see you next time, all of everyone. Thank you. Thank you, Dr. Sarika. Thank you so much.